Hello students, good morning. Welcome back to our online class with Best English School. I hope you all are fit and fine and enjoying our online class. So, first of all, everyone, please subscribe our new channel Best English School Naroda Online on YouTube. This is for your online class. So, please subscribe it. And if you like my video, then please thumbs up. So, in third standard, we are going with English subject. In English, we are learning our unit 4. In this unit, we learned poem, see, song. We also wrote word meaning and the question answer of the poem. Today we are going to read our story. Our story's name is A Little Fish Story. Everyone, please take your textbook with you so easily you can see this. Let's start. There are a great many million fish in the seas, but this story is about just one of them and a very small one at that. Now, this little fish had everything in the seas to make him contented, but he was not happy. You will laugh when I tell you why he was not. He was unhappy because he was so very small. It is very hard to be such a little mite of a fish, he would say over and over again. If I were only larger, how much happier I could be. And he said it so many times that I think he believed it. One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he. When suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. There was much foundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight, and just as its hull was being empty into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water. How good it felt! He swam here and there and everywhere, and some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. So this is our story. Let's read again. There are a great many million fish in the sea. यानी जो समुद्र होता है वहाँ पे बहुत ही सारी फिश थी. बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट. लेकिन ये जो स्टोरी है किसकी है? उनमें से एक फिश की है जो कि बहुत ही छोटी थी, वेरी स्मॉल. यू कैन सी इन दिस पिक्चर येलो एंड ऑरेंज कलर जो फिश दिख रही है. नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन दिस सीज टू मेक हिम कंटेंट. ये फिश के पास सब कुछ था, बट ही वॉज नॉट हैप्पी. फिर भी वो हैप्पी नहीं थी. यू विल लाफ, आप हंसोगे व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वॉज नॉट, कि वो हैप्पी क्यों नहीं थी. ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल. वो अनहैप्पी यानी खुश नहीं थी क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी. इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटल माइट ऑफ ही फिश, ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन. वो बार बार यही बोलती थी कि बहुत ही छोटा होना अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं लगता. इफ़ आई वर ओनली लार्जर, अगर मैं बड़ी होती, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, तो मैं कितना खुश होती.
and he said it so many times that I think he believed it. और वो सोचती कि ये बात को मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, वो उसमें मानती भी थी. One day he was swimming alone with the rest of her school and thinking. एक दिन वो लोग क्या कर रहे थे, स्विमिंग कर रही थी और वो सोच रही थी, नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही. इसमें कोई डाउट नहीं था कि जो बड़ी फिश थी, देखो ये पिक्चर में दिख रही है बड़ी फिश, वो उसकी थैंकफुल थी. व्हेन सडनली विथ नो वार्निंग, और अचानक से कोई भी वार्निंग के बिना, दे फाउंड देमसेल्फ इन द मैसेज ऑफ अ ग्रेट नेट. उन सब क्या हो जाते हैं, एक बड़े से नेट में वो सारी फिश बंद हो जाती है. देखो आपको दिख रही है ये जो नेट है, इसमें सभी फिश बंद हो गई. देयर वॉज मच फाउंडलिंग एंड स्लेप्सिंग एट द नेट वॉज ड्रॉन अप टू वाटर इन टू द सनलाइट एंड जस्ट एज इट हॉल वॉज बिंग. और वो नेट क्या हो रहा था, पानी से दूर जा रहा था, तो यू पे उसको ऊपर खींच रहा था. द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल थ्रो द मैस एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल वाटर. वो क्या करती है, वहाँ से सरक लेती है. देखो ये जो नेट में बंद हुई थी, तो ये नेट की जाली है वो कैसी है, थोड़ा बड़ा है, तो जो स्मॉल फिश थी वो वहाँ से निकल जाती है, स्लिप हो जाती है और वापस से अच्छे पानी में चली जाती है. हाउ गुड इट फेल्ट. जब हम किसी जेल में से बाहर निकलते हैं, जब आप देखो घर में से भी बाहर निकलते हो तो आपको कितना अच्छा लगता है, तो इनको भी बहुत ही अच्छी लगी. ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर. वो यहाँ वहाँ हर जगह तैरने लगी. एंड सम ऑफ द फिश वो न्यू हिम वेल. और जो बहुत सारी फिश उसको जानती थी अच्छे से, पूरी लाइफ तक उन्होंने उसके मुंह से ये नहीं सुना कि मुझे छोटी फिश नहीं रहना है, यानी मुझे बड़ा बनना है. पहले तो वो बोलती थी ना कि मैं बड़ी होती तो मैं कितना खुश होती, लेकिन जब ये केस हो गया उसके साथ तो वो क्या सोचने लगी कि मैं छोटी थी, अब मैं छोटी हूँ तो मैं छोटी ही रहना चाहती हूँ. तो ये स्टोरी पे से हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर हमारे में कोई कमी है तो इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है, हम उसको अच्छे से रिप्लेस कर सकते हैं. हमारे में कोई अच्छी आदत भी होगी, हैबिट होगी ना कुछ अच्छी. तो अगर आप सोचते हो कि मेरी हाइट कम है, मेरा वेट कम है, इट्स नॉट अ बिग डील बेटा. ये सोच के हमें दुखी नहीं होना चाहिए. हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए. आप अगर खुश रहना सीखोगे तो आप किसी भी चीज़ के लिए कभी भी दुखी नहीं होगे. कुछ भी हो लाइफ में, अगर हमारे पास न्यू टॉयज़ नहीं है, किसी हमारे फ्रेंड्स के पास आ गए और हमारे पास नहीं आए, तो कोई बात नहीं, हमारे पास नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर आ जाएगा. ठीक है, टॉयज़ लाना कोई बड़ी बात है नहीं है ना. अगर हमारे पास अभी नहीं है तो बाद में हो जाएंगे. हमें एक चीज़ को पकड़ के दुखी होना नहीं चाहिए. सो अब आप क्या करोगे, कभी भी दुखी नहीं होगे. डोंट बी सैड, ऑलवेज बी स्माइलिंग. आपकी स्माइल सबको अच्छी लगती है. जब आप स्माइल करते हो तो आपके टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स सभी लोग खुश होते हैं, रिलेटिव भी. सो प्लीज़ स्माइल. स्माइल कैन हील एवरीथिंग. So be happy. Okay students, now in homework you have to read this story loudly 2 times. In next lecture we will go with the word meaning and the question answer. I hope you understood it. So everyone please read this story at least 2 times loudly. और उसका जो स्पेलिंग है, जो आपको इजी नहीं आते या आपको समझ में नहीं आते, लर्न नहीं होते, तो उसको अच्छे से 5-6 बार रीड करो और उसको लर्न करो. ओके, सो मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर. बी हैप्पी ऑल टाइम. ओके, बाय, हैव अ नाइस डे.